Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज मैं आप में से कुछ बच्चों के लिए जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ये चैनल को फॉलो करते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो जल्द से मुझे वो एक और प्रॉब्लम आपके नज़र के सामने लेकर आ जाता हूँ। पीछे विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशो है 2:3। इसमें से हमको न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो ये ढूंढना पड़ता है। बैलेंस शीट में क्या दिया गया है, बड़ा सिंपल है। क्रेडिटर है, कैपिटल है, कैश अकाउंट बनाया जाएगा, लैंड, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, और उसके नीचे हम आरडीडी लिख लेंगे 0। अवनी 1 अप्रैल 2018 को नया पार्टनर उनको सिलेक्ट किया गया है और उनको 1/4 शेयर मिलेगा। ये मैं एक फट की क्लिपिंग के द्वारा आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ही शाल ब्रिंग, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन तो मुझे भी है ही शी के बारे में। यहाँ पे ही शाल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। इसका एक जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री मतलब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसका हम एक डेबिट क्रेडिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करें, तो ये हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आरडीडी, ये डेटर का 5% होता है, ये भी हम कर लेंगे। स्टॉक का नया वैल्यू 82,500, तो 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल पॉइंट्स है, इसमें कोई नया ताम झाम नहीं है। और अगर आप उसके बाद पढ़ो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नए पार्टनर्स, नया पार्टनर मतलब विक्रम, प्रज्ञा, अवनी, टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पिछले 2 या 4 लेक्चर से हम ये कर रहे हैं कि नए दुकान में, नए फॉर्म में जो नया कैपिटल है वो रेशो के हिसाब से होना चाहिए। कम रेशो कम कैपिटल, ज़्यादा रेशो ज़्यादा कैपिटल। एंड दी एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू दियर लोन अकाउंट, ये हमने एक लेक्चर पहले किया है कि जो ज़्यादा कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, उसको लोन में आप दे दो, लोन में ट्रांसफ़र कर लो। अब वो कितना होगा वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, बट इट इज़ अ वेरी सिमिलर सिचुएशन टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग। आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। ओके जी, सबसे पहले quick glimpse of the new ratio, which is 9:6:5, and the sacrifice ratio, which is 2:3. Right now, without wasting any time, मैं जल्दी से जो बैलेंस शीट है ना, पहले उसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ऊपर मैंने क्रेडिटर्स लिख लिए, ठीक मेरे पीछे 75,000 का मैंने कैपिटल लिख लिया।
कैश अकाउंट में 7,500 बना दिया। ये क्वेश्चन में गुडविल पार्टनर ला रहा है तो गुडविल अकाउंट बनाया गया है। लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में नहीं लाया था तो हमने नहीं बनाया था। ओके, आप अगर आपने बना दिया तो आप उसको स्किप कर लेना, ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर लेना, उसको ब्लैंक रख लेना। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी या सिर्फ प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर जो होता है और उसके साथ आरडीडी भले ही नहीं है, ज़ीरो करके आपको लिख देना है। दिस इज़ वॉट यू हैड टू ट्रांसफर फ्रॉम द बैलेंस शीट राइट नाउ। पॉइंट 2, क्योंकि 1 कहता है कि अवनी का शेयर 1/4 होगा। ओके फाइन, वो तो रेशियो कैलकुलेशन में काम हुआ। पॉइंट 2 में कहा अगर नहीं वो 37,500 का कैपिटल लेके आया, हाउ डज दैट लुक विजुअली? इस तरह, कैश अकाउंट टू अवनी कैपिटल 37,500 उधर टू इधर मेरे पीछे बाय, एंड इमीडिएटली उसके बाद में कहा कि वो 30,000 का गुडविल लेके आया। हाउ डज दैट लुक? कैसे दिखता है? ऊपर कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, तो चलो जी कैश अकाउंट में हमने टू गुडविल कर दिया और गुडविल में बाय कैश, एंड इमीडिएटली इसको ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया विच इज 2:3 अगेन, 12,000 18,000 उधर टू मेरे पीछे बाय 12,000 18,000। ओके, गुडविल अकाउंट को आप बंद कर लो, 30,000। पॉइंट नंबर 2 जो हमने अनगिनत बार सॉल्व किया है हो गया। पॉइंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग को आप 45,000 वैल्यू कर लो। अच्छा, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा और वो जो इंक्रीज है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 7,500। यस, आप बोलोगे कि सर कितनी फास्ट जा रहे हो, लेकिन ये पुरानी कहानी है और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ मेरे बाद में पहले इस सोल्यूशन को आप देख लो और मेरे बाद में आप ये सॉल्व करना। फर्नीचर को 10% से आप डिप्रीशिएट करो, तो ऊपर आप अगर आप देखो वो डिक्रीज या डिप्रीसिएशन आप लिख सकते हो, ये डेबिट में आएगा क्योंकि ये एसेट माइनस है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आरडीडी 4,350 आता है, माइनस करने से आपको 82,650, बट आरडीडी पहले 0 था तो अभी इंक्रीज हो गया तो वो डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे 2 आरडीडी 4,350, वहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में पहले से ही ना सर्कल आया है, डोंट वरी, उसमें जो मसाला डालना है वो थोड़े टाइम के बाद में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक का नया वैल्यू 82,500 कर देते हैं जी, और उसके लिए हमको थोड़ा प्लस करना पड़ेगा और वो क्रेडिट साइड पे आएगा। हो गया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैपिटल है नए पार्टनर्स का, उसको नए रेशियो में आपको लाना है, उसके लिए नया पार्टनर का कैपिटल शुद्ध होता है। सो अगर आप ऊपर ध्यान दो, जो विक्रम प्रज्ञा अवनी का जो नया रेशियो है 695, अवनी का कैपिटल इज द प्योर कैपिटल विच इज दिस 37,500। ये ठीक मेरे पीछे, क्योंकि बाकी केस में मिलावट हो चुकी है, जो पुरानी कहानी हमेशा होता है। सो अगर 5 रुपए के लिए अवनी 37,500 लाता है तो 9 रुपीज के लिए प्रज्ञा को कितना लाना चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 67,500 और विक्रम को थोड़ा कम प्रज्ञा से, ओके, बट अवनी से थोड़ा ज्यादा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा में मत गिनना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, टोटल बाहर, जो ऊपर, तो मतलब अभी जो कैपिटल है वो रेशो की गाड़ी में आ चुके हैं, बराबर। अगर एक गाड़ी जा रही है ना, उसमें एक सीट है, पैसेंजर बैठे और कोई कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा है और 2 लोगों की जगह ले लेता है, तो मतलब सही होगा कि भैया आप भाड़ा ज्यादा भरो, क्योंकि आप जगह 2 पैसेंजर का ले रहे हो, मतलब साइज के हिसाब से। ऐसे बता रहा हूं मैं, बुरा मत मानना, बट मैं यहाँ पे भी साइज के हिसाब से जो पार्टनर को 5 रुपये मिल रहा है, कम कैपिटल लाओ। जो पार्टनर को 9 रुपया चाहिए, ज्यादा कैपिटल लाओ। ऊपर क्रेडिट है, उसका डेबिट इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करके। नॉर्मली गाड़ी उल्टी होती है। अच्छा,
अब जो कम ज़्यादा है ये प्रॉब्लम में क्या करें, लोन अकाउंट में डाल दो, ये वो स्पेसिफिकली लिख कर देते हैं। अगर कभी ना दे तो आप करंट अकाउंट में कर लो। ओके, अब क्या करो जी, अभी आप टोटल कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी हमने पूरा सॉल्व कर ही लिया है। पहले आप कैश अकाउंट को बंद कर लो। हाँ जी, 75,000 आ रहा है, हाँ लिख लीजिए, ऊपर आ गया। फिर आप एडजस्टमेंट अकाउंट जो क्रेडिट है वो 15,000 ज़्यादा है, हाँ डिफरेंस 10,350 आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन करके। ओके, द रेशियो इज 2:3, ये जी हो गया। अभी पोजीशन मेरा चेंज कर लेता हूँ और वो जो सेकेंड इफेक्ट है वो दे देता हूँ मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। विक्रम का जब मैं टोटल करूँ उसका डेबिट में डिफरेंस 46,140 आता है, और अगर मैं प्रज्ञा का टोटल करूँ उसका डेबिट में डिफरेंस 31,710। ये कम ज़्यादा है, बराबर। आप कपड़े लेने गए, कम ज़्यादा हो गया तो टेलर को बोला थोड़ा स्टिच करा दो, थोड़ा कम करा दो, थोड़ा ज़्यादा करा दो, बट अवनी का परफेक्ट है 37,500। तो ये जो कम ज़्यादा है ना, इसको कहा लोन में डालो, हमने डाल दिया टू लोन अकाउंट, वो डेबिट है, वेल सॉरी नीचे आ जाता हूँ, वो डेबिट है। तो फिर ऊपर लाइबिलिटी में क्रेडिट होगा, हाँ जी, विक्रम लोन और प्रज्ञा लोन। एक बार ये लिख लिया आपने, the balance sheet is almost come to an end, the total part of that remains which is 332,850. Simple, straightforward, direct lecture, कोई यहाँ वहाँ का तामझाम नहीं, बिकॉज लगभग सारी चीज़ें इस सोल्यूशन में हमने पहले भी सीख ली है, और मैं प्रैक्टिस के लिए चाहता हूँ कि आप ये अपने आप भी सॉल्व करना। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें ज़रूर पूछ लेना। अगर आप इसे दूसरों के साथ शेयर करो, उनकी मदद ज़रूर हो जाएगी। और अगर आप नए हो तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन के आइकन को और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें। उससे हमें जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है, रिक्वायर्ड पुश है, ज़रूर मिल जाती है। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।